Good morning, everyone. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are good. So, students, in last class, we have started with the exercise 6.5 and we have completed till the question number 9 in the previous class. And today we will be solving the remaining questions from the same exercise. तो बच्चों हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था. आज हम बाकी बच्चे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. सो आज मैं सॉल्व करूँगी क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 10, 15, 16 क्लास वर्क में सॉल्व होगा और बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 and 17. These all remaining questions you have to solve in your homework. Okay. So let's start with today's first question, question number 10. The cost of 18 cycles is rupees 23,508. Find the cost of one cycle. So here in this question they have given the cost of 18 cycles. कितने cycles की cost पता है हमें इसमें? 18 cycles की cost पता है. और अब हमें find out क्या करना है? हमें find out करना है the cost of one cycle. Okay. So since this is the word problem, we will write down the data given in the words as well. तो पहले words में लिखो number of cycles. कितने cycles है यहाँ पे? 18. So number of cycles is equal to 18. Next, what is the second data mentioned in the question? It is total cost of 18 cycles. ये जो 18 cycles है उसकी कितनी cost है? Total cost it is equal to 23,508. And what we have to find over here? We have to find cost of one cycle. Cost of one cycle is equal to question mark. Now, since here they have given the cost of 18 cycles and we need to find the cost of one cycle, है ना. 18 cycle की cost दी है और one cycle की cost find out करनी है. Since we are going from many to one, we will do over here division, है ना. मैंने ये basic rule समझाया था word problem में. many to one करना है तो हमने division करनी है and one to many है तो हमने multiplication करना है. तो यहाँ पे 18 की cost पता है, one cycle की cost find out करनी है. Means we will do division over here. So cost of one cycle is equal to cost of 18 cycles divided by number of cycles. तो 18 साइकिल्स की कितनी कॉस्ट है उसको अगर 18 साइकिल्स मतलब 18 साइकिल्स की कॉस्ट को अगर हम 18 से ही डिवाइड करते हैं मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स से ही डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ वन साइकिल मिल जाएगा. तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज इक्वल टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 साइकिल्स? इट इज 23,508. सो 23,508 डिवाइडेड बाय 18 कर लो. So use the long division method. Write your dividend inside the box. 23,508 को box में लिखो, divisor को बाहर लिखो box के, which is 18 over here, and start dividing. Since here divisor is 18, we should know the table of 18. 18 divisor है इसीलिए 18 का table हमें आना ज़रूरी है. And after dividing, I have found the quotient is equal to 1,306. एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 0. तो यहाँ पे जो क्वोशंट है वो क्या है? 1306. तो ये क्वोशंट है, दैट विल बी आवर आंसर. तो आंसर में लिखो कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज इक्वल टू ₹1306. रुपीज़ लिखना भूलना नहीं है क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट है. तो यहाँ पे यूनिट आनी चाहिए. ₹1306. एक साइकिल की कॉस्ट क्या बनी? 1306. Now write your answer in the words as well. The cost of one cycle is ₹1,306. Now next, question number 15.
6,803 mangoes were divided equally among 43 persons. How many maximum number of mangoes did each one get and how many remained undivided? So here we have to distribute these 6,803 mangoes among the 43 persons equally. We have to divide these mangoes equally among the 43 persons. तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये जो मैंगोज़ है 6,803 मैंगोज़ को 43 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिवाइड करना है। मतलब हर एक के पास इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज़ होने चाहिए। 43 लोगों में इन मैंगोज़ को ऐसे बांटना है कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक पर्सन के पास सेम नंबर ऑफ मैंगोज़ होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक इंसान के पास कितने मैंगोज़ होंगे और ऐसे कितने मैंगोज़ बचे हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। मतलब हाउ मैनी रिमेंड अनडिवाइडेड का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर एक को इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऐसे कितने मैंगोज़ बचे हैं जो किसी को हम दे नहीं सकते, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवीज़न करना है, क्योंकि हमें ये जो 6,803 मैंगोज़ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिवाइड करना है अमंग 43 पर्सन। एंड देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज़ which the number of mangoes have gotten by the each person, है ना। हमें पता करना है कि हर एक इंसान के पास कितने मैंगोज़ चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास, एक इंसान के पास कितने मैंगोज़ जाएंगे वो फाइंड आउट करना है ना। अगेन वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज़ गिवन टू द वन पर्सन। मीन्स यहाँ पे फिर से हमने डिवीज़न करना है और डिवीज़न का जो क्वोशंट आएगा दैट विल बी दी नंबर ऑफ मैंगोज़ गिवन टू वन पर्सन, और जो रिमाइंडर आएगा डिवीज़न में दैट विल बी दी नंबर ऑफ मैंगोज़ रिमेंड अनडिवाइडेड। मतलब ऐसे कितने मैंगोज़ हैं जो किसी को दिए नहीं गए, जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो नंबर होगा क्या, जो रिमाइंडर में, जो आंसर में रिमाइंडर आएगा वो होगा द नंबर ऑफ मैंगोज़ रिमेंड अनडिवाइडेड। ओके, सो पहले डाटा गिवन लिखो यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ इज इक्वल टू 6,803। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 43। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 43 में। कितने मैंगोज़ डिस्ट्रीब्यूट करने, 6,803। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, नंबर ऑफ मैंगो। So what we have to find over here, number of mangoes each person will get, that is equal to question mark। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि हर एक इंसान के पास, हर एक पर्सन के पास कितने मैंगोज़ चले जाएंगे। अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक के पास कितने मैंगोज़ होंगे। एंड द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू फाइंड ओवर हियर इज़ नंबर ऑफ मैंगोज़ रिमेंड अनडिवाइडेड। मतलब ऐसे कितने मैंगोज़ हैं जो बाकी बच जाएंगे, जिनको हम किसी को भी दे नहीं सकते, क्योंकि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ ऐसे मैंगोज़ होंगे जिसको हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो ऐसे नंबर ऑफ मैंगोज़ भी हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मैंगोज़ ईच पर्सन विल गेट, वी नीड टू डू द डिवीजन ओवर हियर, है ना। हर एक व्यक्ति के पास कितने मैंगोज़ जाएंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। सो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। कितने मैंगोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, 6,803, और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 43। इसीलिए नंबर ऑफ मैंगोज़ ईच पर्सन विल गेट इज इक्वल टू 6,803 डिवाइडेड बाय 43। सो डिवीजन करो। क्वेश्चन क्या आया, 158, रिमाइंडर क्या आया, 9। तो ये जो क्वेश्चन है दैट विल बी द नंबर ऑफ मैंगोज़ ईच पर्सन विल गेट, है ना। तो यहाँ पे लिखो, देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोज़ ईच पर्सन विल गेट is equal to 158. Now write down your answer in the words as well. तो पहले क्या पता चल गया, each person got 158 mangoes। हर एक इंसान के पास कितने मैंगोज़ चले जाएंगे, 158।
और सेकेंड थिंग क्या फाइंड आउट करनी थी, द नंबर ऑफ मैंगोज विच विल रिमेन अनडिवाइडेड, है ना। तो वो भी लिखो यहाँ पे। जो रिमाइंडर है, व्हाट इज द रिमाइंडर, इट्स 9, सो दोज मैनी मैंगोज विल रिमेन अनडिवाइडेड। तो यहाँ पे लिखो 9 मैंगोज रिमेन्ड अनडिवाइडेड। कितने मैंगोज है जो हम किसी को दे नहीं सकते, यहाँ पे 9 है। 9 मैंगोज रिमेन्ड अनडिवाइडेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, what least number should be subtracted from 4320 so that the remainder is exactly divisible by 47? So here we need to find the number that has to be subtracted from this 4320 so that the difference of that subtraction will be exactly divisible by 47. तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम अगर 4320 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो डिफरेंस आएगा उन दो नंबर्स का, मतलब 4320 और जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 47. एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स द रिमाइंडर विल बी 0. उस टाइम पे जो डिवीजन का रिमाइंडर आएगा वो होगा 0. तो हमें ऐसा लीस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर जो हमें 4320 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, मतलब जो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस आएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 47. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 4320 को 47 से डिवाइड करेंगे और डिवीजन में जो रिमाइंडर आएगा दैट वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4320, सो दैट जो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, इसको 4320 और जो रिमाइंडर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा सब्ट्रैक्शन का, दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय 47, है ना। सो पहले यहाँ पे लिखो डिविडेंड क्या है 4320, डिवाइजर क्या है 47. नाउ what we have to find over here, the number to be subtracted from 4320, that is why it is equal to question mark. Now to find number to be subtracted from 4320 we have to divide 4320 by 47 and find the remainder of division. अब ये जो सबसे छोटा नंबर, the least number पूछा है ना, the least number that has to be subtracted from 4320 so that the difference will be perfectly or exactly divisible by 47. तो हम पहले डिवीजन करके देखेंगे और डिवीजन का जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4320 से, ठीक है। सो 4320 डिवाइडेड बाय 47. सो बॉक्स के अंदर लिखो डिविडेंड, बॉक्स के बाहर लिखो डिवाइजर. सो आफ्टर डिवीजन आई हैव गॉट द quotient which is equal to 91. But here we are not interested in the quotient, we are interested in the remainder. यहाँ पे हम रिमाइंडर में इंटरेस्टेड है. तो यहाँ पे जो डिवीजन है 4320 और 47 का, उसमें डिवीजन में रिमाइंडर क्या आया है 43. सो वी आर इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर बिकॉज द रिमाइंडर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 4320 so that the difference of that subtraction will be exactly divisible by 47. तो रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पे 43. तो अब हमने ये जो 43 है इसको 4320 से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो पहले आंसर में लिखो hence we need to subtract 43. Hence we need to subtract 43 from 4320 so that the remainder, that is 4320 minus 43. रिमाइंडर मतलब क्या है यहाँ पे, ये वाला रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो डिफरेंस आया है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ओवर हियर. सो 43 और 4320 और 4320 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय 47. ओके, ऐसे इसका मीनिंग है. सो we have to subtract 43 from 4320. So after subtracting 43 from 4320, the difference is 4277. 4277 क्या आया? डिफरेंस आया जब हमने 4320 में से 43 को सब्ट्रैक्ट किया. तो अब हमने चेक करना है ये 4277 एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं 47 से. सो नाउ डिवाइड 4277 बाय 47 और चेक कर लो कि हमारा ये जो रिमाइंडर हमने 43 लिया था सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे 43 को सब्ट्रैक्ट किया ना हमने 4320 में से, वो करेक्ट है कि नहीं. सो ये डिवीजन करके ही पता चलेगा, क्योंकि अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है 47 से, दैट मीन्स दिस नंबर इज करेक्ट, 43 इज करेक्ट. सो 4277 डिवाइडेड बाय 47 करो. सो द क्वोशंट इज 91 एंड रिमाइंडर इज 00. आ गया ना यहाँ पे रिमाइंडर 00. दैट मीन्स हमने 4320 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया, मतलब जो डिफरेंस आया, which is equal to what? Which is equal to 4277, है ना. तो उसको डिवाइड करके देख लिया हमने 47 से, तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, यहाँ पे 00 आया है. दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. सो विच मीन्स 4277 is exactly divisible by 47. Okay, so in this way we have finished with the exercise 6.5, and in next class we are going to solve the exercise 6.6. Till then, thank you, have a nice day.